Good morning, student. Myself Chirag Sukhani, and I'm going to teach you elements of strategic management subject. And in last session, we completed the discussion Porter five forces model, or the forces that shape competition in the industry. And in that, we completed second force, that is bargaining power of the buyer. Clear? Because buyer is always bargaining to lower down the price of the product. Okay, then we completed there are some of the circumstances in which buyer group it is powerful, that is when the buyer purchases in a larger volume. Okay, then the buyer earning the low profits. Okay, then the buyer purchase a product which is standard or the undifferentiated. Then the product which a buyer purchase form a main components of the product, and it represents a significant proportion of the cost. Okay, and then the next is industry's product, which is unimportant to the quality of the buyer's product. Okay, then buyer pose a problem of backward integration. So some of the circumstances in which buyer group it is powerful. Now today in this session we will continue the third force, that is bargaining power of supplier. Now supplier are those who supply the inputs. Okay, now main supplier, what supplier bargaining for increasing the price of the various inputs. ओके, यानी जो ये सप्लायर ग्रुप सप्लाई करता है फर्म को प्रोडक्ट, वो सप्लायर प्रोडक्ट का ऑलवेज क्या चाहता है, प्राइस ऑफ द इनपुट मटेरियल हाई हो जाए. ओके, so third force is what? Bargaining power of the supplier. Now supplier can always exert bargaining power on participant on an industry by raising price of the goods and services. Always what they bargain? They bargain for raising price of the goods and services. Okay, thereby supplier can affect profitability of the industry, because supplier always bargaining करता है to increase the price of the input material जो फर्म को सप्लाई करता है. So अगर वो प्राइस हाई हो जाएगी, सो फिनिश प्रोडक्ट का प्राइस भी हाई हो जाएगा. ओके, सो फिनिश प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाएगा. सो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी. सो सप्लायर ऑलवेज एक्सर्ट bargaining power on participant in an industry by raising the price of the goods and services. Thereby supplier can affect profitability of the industry. Now the bargaining position of the supplier group depends on number of characteristics of its market situation and on the relative importance of the sales to the industry as compared with the overall business. That means कि bargaining power of the supplier mainly depends on what? Depends on the number of characteristics of market situation. Now market situation मतलब मार्केट में कितने नंबर ऑफ सप्लायर ग्रुप है, सप्लायर का क्या पोजीशन है. ओके, सप्लायर कौन से टाइप का प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है. सो सप्लायर का बार्गेनिंग पावर इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट सिचुएशन एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्स. यानी सप्लायर पूरे इंडस्ट्री में कितना इनपुट मटेरियल सप्लाई करा है, उसके ऊपर भी डिपेंड है सप्लायर का बार्गेनिंग पोजीशन. सो bargaining position of the supplier group depends on 2 points, that is characteristics of the market situation and the relative importance of the sales to the industry as compared to the overall businesses. Clear? So here there are certain circumstances in which supplier group is powerful, and in which condition, in which situation the supplier group it is much more powerful. Okay, so here there are some of the circumstances or the situation or the condition in which supplier group it is powerful. So first is dominated by the few organization. That means if the supplier group is dominated by few organization, then the supplier bargaining position is better.
ओके, यानी जो सप्लायर जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, इट इज डोमिनेटेड बाय द फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, यानी फ्यू ऑर्गेनाइजेशन ही उसको सप्लाई करती है। सो वो केसेस में सप्लायर का बार्गेनिंग पोजीशन बेटर हो जाएगा, यानी सप्लायर ऑलवेज बार्गेनिंग फॉर इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द इनपुट मटेरियल। ओके, बेस्ट एग्जांपल in case of polyester yarn industry textile. Okay, so in case of polyester yarn industry, supplier group is dominated by the Reliance industry. Okay, यानी Reliance industry कौन सा प्रोडक्ट सप्लाई करता है? पॉलिस्टर यार्न. Okay, so it is dominated by this Reliance industry, whereas buyer group it is more fragmented in the form of numerous power looms organization. So Reliance Industries enjoy better power to fixing the price of the product and other terms and the condition. So यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हुआ, जो Reliance Industries है नाउ उसका प्रोडक्ट कौन सा है? यान, पॉलिस्टर यान। ना पॉलिस्टर यान प्रोड्यूस करने वाले मैन्युफैक्चरर और दी सप्लायर बहुत कम है। ओके, बट यान को परचेज करने वाले बायर बहुत सारे, यानी पावरलूम इंडस्ट्रीज नंबर ऑफ है। ओके, तो यहाँ पे अल्टीमेटली वो लोग डोमिनेट करेंगे, सप्लायर ग्रुप लेस एंड बायर बहुत सारे हो जाएंगे, तो सप्लायर क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। ओके, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलवेज कीप द प्राइस हाई ऑफ दैट यान, पॉलिस्टर यान। ओके, सो यहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर ग्रुप क्या हो जाएगा? हाई, यानी बेटर हो जाएगा, बिकॉज सप्लायर ग्रुप फ्यू है बट बायर ग्रुप नंबर ऑफ है। So in this case, supplier group it is much more powerful. यानी they only decide the price of the product and they only decide the terms and the condition. So first is what? If the supplier group is dominated by few organization. Clear? Second is the product is unique or differentiated. That means if the product of the supplier group it is unique or differentiated, then it can exert greater pressure. तो इजी है, यानी जो सप्लायर जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो एकदम यूनिक है। यूनिक मतलब दूसरा फॉर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, विच इज टोटली डिफरेंशिएटेड। सो इफ द प्रोडक्ट इट इज यूनिक और द डिफरेंशिएटेड, then it can always exert greater pressure. We can take an example of in case of medicine, okay, pharmaceutical industry, in case of certain medicine, जो certain वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाले सप्लायर है वो एकदम वो लोग जो वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं ना, इट इज यूनिक है, डिफरेंशिएटेड। सो अदर ऑर्गेनाइजेशन सेम टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट, पेटेंट एंड सो ऑन। ओके, सो वो केसेस में सप्लायर ग्रुप का बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। सो इफ द प्रोडक्ट ऑफ द सप्लायर ग्रुप इट इज यूनिक और द डिफरेंशिएटेड, देन द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर इज हाई। क्लियर? थर्ड सिचुएशन, सप्लायर ग्रुप हैज इनबिल्ट स्विचिंग कॉस्ट, यानी इफ द सप्लायर ग्रुप हैज इनबिल्ट स्विचिंग कॉस्ट, then it has considerable bargaining power. Now what do you mean by switching cost? A switching cost are the fixed cost that buyer faces in switching from one supplier to another supplier. Okay, and this arises because buyer's product specification tie match to a particular supplier. आया समझ में? So अगर सप्लायर ग्रुप हैज इनबिल्ट स्विचिंग कॉस्ट, सो वो केसेस में भी बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर ग्रुप इट इज इंक्रीजेस। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय स्विचिंग कॉस्ट। कि स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है? जो फिक्स कॉस्ट होता है जो बायर को फेस करना पड़ता है इन स्विचिंग फ्रॉम वन सप्लायर टू अनदर सप्लायर। सो एग्जांपल, आई एज अ बायर and you all student as a supplier of any product, okay, and I as a buyer. Now मैं एक बायर से परचेज करता, एक सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, दूसरे से परचेज करता हूँ। ओके, नाउ एक से दूसरे पे जाना, स्विच करना, वन सप्लायर टू स्विचिंग टू अनदर सप्लायर, उसका कॉस्ट हाई हो जाएगा। सो वो केसेस में बायर ऐसा स्विचिंग नहीं करेगा, वो
वही सप्लायर से परचेज प्रोडक्ट को परचेज करेगा। बिकॉज आई एज अ बायर मैं क्या सोचता हूं कि सप्लायर का जो मुझे जो सप्लायर मुझे प्रोडक्ट सप्लाई करा है ना, इट इज मैच विथ माई स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, सो वो केसेस में सप्लायर ग्रुप का बार्गेनिंग पावर ऑलवेज क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर हुआ। लेट एन एग्जांपल ऑफ कल वाला एग्जांपल ले लो कि टीवी पिक्चर ट्यूब एंड द टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके, टीवी पिक्चर ट्यूब एंड टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। नाउ सोनी टेलीविजन प्रोड्यूस करता है और टीवी पिक्चर ट्यूब बनाने वाले बहुत सारे मार्केट में सप्लायर है। बट से एग्जांपल कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, बहुत सारी है। नाउ जो सोनी टेलीविजन है कंपनी ए से टीवी पिक्चर ट्यूब परचेज करता था। सोनी टेलीविजन एज अ बायर एंड कंपनी ए वो सप्लायर है। ओके, वो परचेज करता था। नाउ ए कंपनी से बी को स्विच करना, सोनी टेलीविजन फेसिस हायर कॉस्ट। ओके, तो वो केसेस में ऑलवेज वो किससे परचेस करेगा, ए से ही परचेस करेगा। बी के पास क्यों जाना है, बिकॉज हाई कॉस्ट चला जाएगा, सो ए से ही वो परचेस करेगा। और सोनी टेलीविजन जो टीवी पिक्चर ट्यूब परचेस करती है फ्रॉम द कंपनी ए, उसका प्रोडक्ट इट इज टोटली मैच विद द सोनी एज अ बायर। जो प्रोडक्ट बनाता है ना टेलीविजन, उसके साथ एकदम मैच हो जाता है। सो केसेस में ऑलवेज वो कंपनी ए से ही परचेस करेगा। सो कंपनी ए का बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बिकॉज वो क्या सोचेगा, सोनी टेलीविजन को तो हमसे ही परचेस करना है ना, बिकॉज उसका प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट के साथ एकदम मैच हो जाता है। सो वो केसेस में तो हमसे ही परचेस करेगा। सो हम लोग क्यों हमारा प्रोडक्ट का प्राइस हाई ना करें। Okay, so if the supplier group has inbuilt switching cost na, in that cases also supplier bargaining power it is higher. Okay, and the switching cost क्या होता है, जो buyer face करता है from switching from one supplier to another supplier. Clear? Fourth, product which does not have any substitute, यानी if the supplier group supplies a product which does not have any substitute, कोई substitute ही नहीं है, just like monopoly जैसा, so it enjoy the considerable bargaining power. Okay, यानी जो supplier product produce कर रहा है उसका मार्केट में कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं, सिंगल प्रोडक्ट हुआ, नो क्लोज सब्सिट्यूट प्रोडक्ट। सो इन दैट केस ऑल्सो ना सप्लायर का बार्गेनिंग पावर इट इज मच मोर हायर। दिस हैपन मोस्टली इन केस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ओके, जो हम लोग गुजरात है तो गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ना वो लोग का जो भी प्रोडक्ट है विच हैव नो सब्सिट्यूट, सो वो लोग जितना पर यूनिट प्राइस हाई करे लो करे उसके हाथ में। सो वो केसेस में सप्लायर का बार्गेनिंग पावर क्या हो जाता है, हाई, यानी ऑलवेज दे कीप द प्राइजेस हाई। क्लियर? एंड लास्ट, इफ द सप्लायर ग्रुप possess the problem of forward integration. Okay, if the supplier group possesses the threat of forward integration, ये हम लोग ने कल पढ़ा। बायर में किसका प्रॉब्लम होता था, बैकवर्ड यानी एंटर इनटू द बिजनेस ऑफ आता है ना आपको, फॉरवर्ड यानी आगे जाना, बैक यानी पीछे जाना। ओके, सो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन यानी enter into the business of customer and backward यानी enter into the business of supplier. Okay, अब यहाँ पे supplier group क्या प्रॉब्लम और पॉज कर रहा है, they possess the threat of the forward integration. Okay, so it has considerable bargaining power. कल का ही एग्जाम्पल ले लो कि टीवी पिक्चर ट्यूब मैन्युफैक्चरर है ना, टीवी पिक्चर ट्यूब मैन्युफैक्चरर enter into the business of customer by extending its production line or the production chain and manufacture the television set. Okay, यानी जो टीवी पिक्चर ट्यूब, वो पिक्चर ट्यूब अलग अलग टेलीविजन कंपनी को सप्लाई करता था, अभी वो लोग खुद बनाना स्टार्ट कर देंगे, टेलीविजन सेट वो लोग खुद बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो जो टेलीविजन सेट परचेज करता था, ओके, उसका तो सप्लाई बंद हो जाएगा। आ रहा है समझ में? सो इफ द सप्लायर ग्रुप possess a threat of forward integration, in that case also supplier bargaining power it is much more higher. सो कल का एग्जांपल, एक टीवी पिक्चर ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है,
टीवी पिक्चर ट्यूब मैन्युफैक्चरर कंपनी है। नाउ वो क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, वो टेलीविजन सेट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। आ रहा है समझ में? नाउ जस्ट एज्यूम कि टेलीविजन सेट सोनी भी प्रोड्यूस करती है। कल का एग्जांपल सोनी टेलीविजन, सोनी टीवी पिक्चर ट्यूब परचेज करता था। अभी ये टीवी पिक्चर ट्यूब है ना, टीवी पिक्चर ट्यूब, वो क्या बोल रहा है, हम लोग ही खुद टेलीविजन सेट बनाने वाला है। सो हम लोग आपको टीवी पिक्चर ट्यूब सेंड नहीं करेंगे, सप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो यहां पे तो सोनी को तो प्रॉब्लम हो जाएगा बिकॉज उसका सप्लाई स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? अभी उसको नया सप्लायर फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये सब बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जो ये टीवी पिक्चर ट्यूब कंपनी है वो सोनी से बार्गेनिंग करेगा, आप हमारे प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर दो तो हम लोग आपको सप्लाई करेंगे। ओके, सो इफ द सप्लायर ग्रुप पॉज or possess the threat of forward integration, in that case also the bargaining power of the supplier it is higher. Clear? So these are the situation or the circumstances in which bargaining power of the supplier it is high. That is, supplier group it is dominated by few organization. If the supplier supply the product it is unique or differentiated, then if the supplier group has inbuilt switching cost, okay, and if the product which the supplier supply which does not have any substitute product, and if the supplier possesses a threat of forward integration. Clear? So these are the third forces, that is bargaining power of the supplier. Now in next session we will continue, that is fourth forces, that is threat of entry, and the fifth, that is rivalry among competitors. Clear? Okay, bye.